بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میں آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں ہوں زہرا رضا۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کی شروعات بہترین انداز سے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس ملک بھر میں دوبارہ سے پھیل رہا ہے اور ہر دوسرا تیسرا شخص ہمیں کھانستا چھینکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا یہ والدین کے لیے ایک بڑا مشکل فیصلہ بھی ہے، اور اسکولوں میں کس حد تک احتیاط کی جا رہی ہے۔ اور کل ہی جو ایک خبر آئی ہے صوبہ سندھ کی جانب سے کہ تعلیمی اداروں کو موسم سرما کی چھٹیاں جو ہیں وہ نہیں دی جائیں گی، اس حوالے سے بھی ماں باپ پریشان ہیں۔ تو ہم نے کہا آج اپنے پروگرام میں اس بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک مہمان موجود ہیں جن کا تعارف زہرا کروا دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر تعلیم محمد اختر آرائیں صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک ہے سر، جیسا کہ کل وزیر تعلیم نے کہا سعید غنی نے کہ اس بار جو ہے ونٹر ویکیشنز جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، اور کرونا کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور کچھ اگر ہم تعلیمی اداروں کا کچھ اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں تو پنجاب میں جب اسکول کھولے گئے تو اب تک پچھلے 2 ماہ میں 440 کے قریب پازیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے، اور سندھ کی بات کی جائے تو 1300 سے زائد کیسز اب تک تعلیمی اداروں میں رپورٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ کافی خطرناک سچویشن ہے، سردیاں ہیں، کرونا کی دوسری لہر ہے۔ اس میں اگر والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا نہیں ہوگا؟ میں شارٹ آنسر اس کا دوں کہ جو آپ نے لاسٹ میں جملہ بولا کہ کیا یہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا، جی، کیا کرونا وائرس اسکول میں ہی چھپ کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا اسکول سے ہی اسپریڈ ہوتا ہے؟ لیکن یہ سر بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہوا ہے رپورٹس کے مطابق جب اسکول کھولے گئے تو بچوں میں بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، سالڈ ایویڈنس اس چیز کی موجود نہیں ہے کہ کرونا وائرس اسکول سے پھیلتا ہے، یہ ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بچوں میں بہت کم کیسز آئے ہیں، یہ سمجھ میں آتے ہیں، نہیں 1300 مگر بچے جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ اپنے گھروں میں وہ لے کے تو آ سکتے ہیں وائرس۔ چلے اس چیز کو بھی ذرا ایک سائڈ پہ چھوڑتے ہیں۔ جب پوری دنیا میں سارے تجارتی مراکز اور سارے دفاتر وغیرہ جب بند کیے جا رہے ہیں احتیاط کی وجہ سے، تو اس صورت میں اسکولوں کو بھی بند کرنے پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اعتراض کیا جانا چاہیے۔ کوئی کبات نہیں، بالکل ہم ساتھ دیں گے، گورنمنٹ کا ساتھ پہلے بھی دیا تھا، اب بھی دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر ایک پالیسی جو ہوتی ہے اس پالیسی میں اگر صرف اور صرف اسکول ہی ایک ایسی جگہ محسوس کی جائے یا پورٹریٹ کی جائے کہ اسکول سے ہی وائرس اسپریڈ ہوتا ہے تو یہ نامناسب ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ نہیں سر، یہ نہیں ہم بات کر رہے کہ خالی اسکول سے جو ہے اسپریڈ ہو رہا ہے، باقی چیزوں پہ بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ونٹر ویکیشنز جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں دی جائیں گی، اس پہ ہم بات کریں، کیونکہ ابھی اگر ایک بچہ گھر بیٹھے کلاسز لے سکتا ہے، ہمارے پاس آلٹرنیٹ موجود ہے، تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اسکولز ابھی جو ویکیشن جو ہے وہ دے دی جائیں؟ بہتر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں تو 35% نیٹ اویلیبلٹی ہوتی ہے کسی بھی فیملی کے اندر، کسی بھی پرسن کے پاس، مگر پاکستان میں 15% جو ہے، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اس میں دیہی اور شہری علاقے شامل ہیں۔ تعلیم تو ہر جگہ ہوتی ہے، اسکول تو پبلک اسکول ہوں یا پرائیویٹ اسکولز ہوں، تو جب 14% اور 15% انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہو اور پاور وہاں پراپر نہ ہو، وہ تو فلاپ ہو چکا ہے، پہلے ہی فلاپ ہو چکا ہے۔ یا تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو اس پہ پیسہ خرچ کرے کہ وہ اسٹرکچر ڈیولپ کرے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اسٹرکچر ڈیولپ ہو نہیں سکتا، اور ہماری پبلک ویسے ہی فیس ٹو فیس ٹیچنگ پہ جو ہے وہ آلریڈی جو ہے یوز ٹو ہے، یا نارملی ان کے پاس یہ طریقہ کار تھا۔ تو اب ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کو گھر میں بٹھائیں؟ ہاں، جہاں تک کیمرے سسٹم کے اسکولز ہوتے ہیں وہ سکسیسفلی آن لائن ٹیچنگ کا ایکسپیریمنٹ کر بھی رہے ہیں، ایکسپیریمنٹ کیا کہوں گا، بلکہ وہ سکسیسفل کر بھی رہے ہیں، مگر کیونکہ میٹرک سسٹم کے طالب علم زیادہ ہوتے ہیں، چاہے اربن ایریاز میں ہو یا دیہی علاقوں میں ہو، وہاں پر زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہیں سے کنٹینیو کریں گے، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک بریک کا، کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے نیوز کیفے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں ہونے والی چھٹیوں کے حوالے سے۔ بہت سارے ایسے خیالات ہیں جو والدین کے ذہن میں ہیں کہ پتہ نہیں بچوں کے اسکول دوبارہ سے
کورونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے بند نہ ہو جائیں, یا سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو آج یہ ساری کنفیوژنز اپنے پروگرام میں ہم کلیئر کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر تعلیم جناب اختر ارائیں صاحب موجود ہیں. وقفے سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا صرف سکولز ہی کرونا وائرس کی وجہ ہے, تو آپ نے یہ ایسا کیوں کہا؟ آپ کو لگتا ہے کہ صرف سکولز ہی بند ہیں سوسائٹی میں؟ کیا سارے تجارتی مراکز, دفاتر اور مطلب ایک سیکٹر کو تو بند کیا گیا ہے, ایون جلسے وغیرہ جو ہے یہ بھی جتنے اجتماع ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں, تو صرف سکولز کا ہی آپ کو کیوں ایسا خیال آیا کہ صرف سکولز ہی بند کیے جائے؟ دیکھیے میں پریزیڈنٹ ہوں صوبہ سندھ کا, آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا, کیونکہ میرا کانٹیکٹ پورے پاکستان میں رہتا ہے, فیڈ بیک آتا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہمارے اسکول میں ایس او پیز کی ٹریننگز دی گئی ٹیچرز کو, ہم جب بچے کو چیک ان کرتے ہیں تو پراپرلی ایس او پیز کے تحت جو ہے ان کو ماسک ہے, ڈس انفیکشن ٹنل کے تھرو گزارا جاتا ہے, سینیٹائز ہوتا ہے, پراپرلی چیک لسٹ بنی ہوتی ہے. ہر آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے بچہ یا تو واش کرنے جاتا ہے یا سینیٹائزر یوز کرتا ہے سکتا ہے. پبلک اسکول کے جتنے بھی اسکولز ہیں وہاں پر ایشوز ہے, کیونکہ وہاں فنڈز کا ایشو ہے, وہاں کام فنڈز پہ ہوتا ہے. کچھ ماڈل سکولز ہیں جہاں پر یہ چیزیں اویلیبل تھیں, باقی جگہ پر کچھ ہے ہی نہیں. تو اس لیے آپ کے مطابق کیا کیا جائے؟ جتنے پبلک سکولز ہیں وہ بند کر دیے جائیں, پرائیویٹ کھول دیے جائیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. پبلک اسکول کو فنڈز دیے جائیں, ان کی مانیٹرنگ کی جائے. جب جو مانیٹرنگ کمیٹیز بنائی گئی تھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی, اس میں وہ وزٹ کر رہی تھی, انہوں نے بھی یہی فائنڈ آؤٹ کیا. آپ نے دیکھا کہ بہت سے اسکولز بند ہوئے, جس میں اکثر و بیشتر جو ہے اکثر اسکول جو ہے وہ پبلک اسکولز ہیں, یعنی گورنمنٹ اسکولز ہیں. میں نہیں کہہ رہا, وہ ظاہر ہے جن کو سیل کیا گیا. ہمارا اگر پرائیویٹ اسکولز بھی, ہماری مانیٹرنگ کمیٹی جو ڈی سیز یا جو بھی وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بالکل اتھارٹی اور مجسٹریٹ ہیں, اسی وقت اسکول کو سیل کر دیں, ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. مگر کیونکہ ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں ایس او پیز 100% فالو کیے جا رہے ہیں, تو اسی وجہ سے امکانات نہیں ہے کہ وہاں سے بچہ کیریئر بن سکتا ہے. صحیح, نو ڈاؤٹ سر. اس میں تو آپ کوئی شک نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسکولز میں جو ہے وہ پراپر ایس او پیز فالو ہو رہی ہیں, لیکن وہ بچے کہاں جائیں سر جو پبلک اسکولز میں پڑھتے ہیں, اور اگر چھٹیاں ہو جاتی ہیں, دوبارہ لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور ان کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی بھی نہیں ہے, اسکولز کی طرف سے بھی نہیں ہے, گھر میں بھی وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ ان کا جو پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے وہ کس طرح سے پورا ہو؟ یہی تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. آپ کی بات بڑی زبردست ہے. ان کا حرج ہو رہا ہے, وہ کہاں جائیں بچے؟ دیکھیں 7.5 کروڑ بچہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو کہ موجود ہے پاکستان کے اندر, جس میں سے 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول پہلے ہی تھا. اس وقت یہ ہے کہ 3.5 کروڑ سے زیادہ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, یعنی کہ جو 5 کروڑ بچہ پبلک اور پرائیویٹ اسکولز میں جاتا تھا, وہ اس میں سے 1 کروڑ سے زیادہ بچہ واپس نہیں لوٹا اسکول کے اندر. اس کی وجہ فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں, اس کی وجہ ڈر اور خوف ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی آپ مزید آؤٹ آف اسکول کریں گے, کیا آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ یعنی کہ آدھے بچوں کو گھر بٹھا دیں گے, 4 کروڑ بچوں کو گھر بٹھا دیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ تو دیکھیں, یہ تو گورنمنٹ کی سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایسی پالیسیز اختیار کرے. ٹھیک ہے, ایک دن صحیح, اسکول 2 دن ہی بچے آ جائیں, کم از کم اسائنمنٹ لے کر جائیں, تعلیم کا سلسلہ جاری رہے, فیسلٹی پرووائڈ کرنی چاہیے, اور گورنمنٹ کوآپریٹ کر رہی ہے. سعید غنی صاحب نے بہت اچھا بیان دیا, جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے مطابق یہ فیصلے کیے گئے تھے کہ سردیوں کی چھٹیاں نہیں ہوں گی. انہوں نے یہی بیان دیا ہے, مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک کہ نیکسٹ یعنی کہ 23 کو جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے, جیسے کہ ابھی میٹنگ ہوئی تھی پچھلے 16 کو ہوئی تھی, تو اس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا, جس میں ہیلتھ منسٹری کا بھی پوائنٹ آف ویو آئے گا. اختر بھائی, سردیوں کی چھٹیاں ہونا کیوں ضروری ہیں ویسے؟ اتنی چھٹیاں ہوئی تو ہیں بچوں کی, ابھی آگے 10 دن سے ایسا کیا ہو جائے گا کہ وہ ایک ایشو کریٹ ہو گیا ہے تعلیم کے شعبے میں اور حکومت سندھ کی سطح پہ؟ دیکھیں حکومت سندھ ہیں, دیکھیں ہماری حکومت جو ہے, سعید غنی صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو پبلک کو اچھی لگتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک لیڈر ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا کیونکہ پچھلے دوران 6-7 مہینوں میں اسکول جب بند تھے تو پبلک بڑی پریشان تھی, بچے بے راہ روی کا شکار ہو گئے, گیم کھیلنے لگ گئے. ابھی بھی حالات وہی خراب ہیں کہ بچے جو ہے پڑھائی کی طرف سارے کے سارے نہیں آئے, خاص طور پر ایڈولنس ایج کے بچے جو ہے وہ تو بالکل بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں, اور وہ بجائے آن لائن پڑھنے کے کچھ اور ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو سعید غنی صاحب نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ اسٹیئرنگ کمیٹی کی بات تھی, مگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 23 تاریخ کو جب میٹنگ ہوگی, جو سب فیصلہ کیا جائے گا وفاق کے لیول پہ پورے پاکستان میں ہوگا. مگر یہ ایک بات ذہن میں رکھیے, سرد علاقوں میں چھٹیاں جو ہے ناردرن ایریاز میں KPK کے اندر یا کوئٹہ کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر وہ ابھی سے سٹارٹ ہونے والی ہیں. اگر یہ افواہ ہے کہ جی وہاں 3 مہینے کے لیے بند کیے جا رہے ہیں, 2 مہینے کے لیے بند کیے جا رہے ہیں, وہاں تو نصاب پہلے پورا کر دیا جاتا ہے.
एग्जाम लेकर नवंबर में छुट्टियां दे दी जाती हैं दिसंबर जनवरी में, क्योंकि बर्फबारी भी होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये उल्टा सिस्टम होता है, वहाँ पर नॉर्दर्न एरियाज में या ठंडे इलाकों में गर्मियों की छुट्टियां बहुत कम होती हैं, 10-15 दिन की होती हैं, सर्दियों की ज्यादा होती है। तो सिचुएशन को मिक्सअप मत कीजिए, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल हक है। अगर वहाँ पर सर्द इलाकों में, मगर सिंध में ऐसा कोई इलाका मौजूद नहीं है ना, यहाँ मौजूद नहीं है, मगर क्योंकि वो इसलिए हुआ था कि डेज ऑफ टीचिंग जो है कम हो गए थे, तालीम का सिलेबस जो स्मार्ट सिलेबस बनाया गया, शॉर्ट किया गया, वो कम हो गया। देखिए गवर्नमेंट फिक्रमंद है, मगर बात यह है कि उनके पास या तो वसाइल नहीं है, या ये है कि वो जो फैसला करते हैं तो वो फैसला जो है सोच समझ के नहीं करते, वो कहीं ना कहीं से प्रेशर नजर आता है, कुछ न कुछ होता है, वो फैसला कर डालते हैं। मगर नुकसान क्या हुआ, देखिए जो बच्चे, मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस, हमारे पास डेटा ये आ रहा है कि अब जो है 8, 9, 10 के बच्चे वो LMS पे यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन भी नहीं पढ़ रहे, उनको शौक ही नहीं है, वो PUBG और पता नहीं कौन सी गेमिंग और कौन सी इंटरनेट चीजों पे लग गए हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। क्या हुआ कि 8 क्लास का बच्चा जो अब 9 में आया है, उसने बोला स्मार्ट सिलेबस आ जाएगा, वो तो दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह करके स्कूल बंद हो जाए, माइंड नहीं कीजिएगा, वो बंद हो जाए ताकि इस बार नहीं, देखिए रियलिटी को फेस करना चाहिए। ये पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, अगर वो दिल नहीं करता है, वो आपकी बात सही है, और अचानक से कंप्यूटर की वजह से और स्क्रीन टाइम जो है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, एक अलग तरीके से फौरी तौर पे नहीं पढ़ाया जा सकता। वो बहुत सारे मसाइल और चैलेंजेस तो हैं, मगर हमें नहीं है सर। वक्फा आ गया सर जी, एक वक्फे के बाद आते हैं तो जरा इस हवाले से मजीद बात करेंगे। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और आज हम बात कर रहे हैं तालीमी इदारों के हवाले से, स्कूलों के हवाले से, और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट जो कि माहिर तालीम हैं, अख्तर अराई साहब। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि वो बच्चे जो कि एडोलेसेंस पीरियड में हैं, जो कि 8-9 क्लास में हैं, ओ लेवल्स में हैं, उनकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी मुतासर हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में उनका जो फोकस है वो इतना पढ़ाई पे नहीं है, वो दूसरी चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं या इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में वालिदैन की आप क्या समझते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनको कितना विजिलेंट होना चाहिए? देखिए बेसिकली तालीम की जो क्वालिटी है या उसकी जो बेसिकली आउटकम्स होते हैं, जब स्टूडेंट एक डिग्री या सर्टिफिकेट लेता है तो वो अब आउटकम्स जो है बहुत ज़ीरो हो गए हैं, क्योंकि आपने देखा कि पिछले साल 100% बच्चे पास कर दिए तमाम बोर्ड्स ने। ठीक है, मैं कैमी सिस्टम की अभी फिलहाल बात नहीं कर रहा, मैं मैट्रिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो कि मास लेवल पर है। सही। अब इस साल भी कभी इम्कानात हो जाएंगे कि बच्चे जो है बगैर एग्जाम के पास हो जाएंगे। जब ऐसे 2 बैचेस हम निकाल देंगे तो आप क्या समझते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होगी? पहले ये बच्चे जो एडोलेसेंस एज में जैसे कि 15-16 साल के बच्चे मैट्रिक करते थे, तो ये पहले भी चीटिंग कल्चर मौजूद था, ये आसानियां तलाश करते थे, मगर अब ये इनके पास एक नई आसानी आ गई है कि शायद दुआ करें और जो है ना बगैर एग्जाम के भी पास हो जाएं। जब हमारे बच्चे बगैर एग्जाम्स के पास होंगे तो आप क्या समझते हैं कि हम अपने कॉलेज को या अपने यूनिवर्सिटीज़ को क्या इनपुट देंगे? अगर एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए बच्चा जा रहा है तो उसका मयार क्या होगा? ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं होगा, क्वालिटी तो गिर गई। सही है सर, क्वालिटी एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया जिस एक परेशानी और मुश्किल में ये वक्त गुजार रही है, इसमें मतलब ऑनलाइन एजुकेशन ही एक वाहिद रास्ता जिस पर पूरी दुनिया मुत्तफिक है। और आप ये देखें कि ऑनलाइन एजुकेशन के जहां कुछ फवायद हैं इस बीमारी की हालत में, इस वबा की हालत में, मगर उसके मुज़र असरात भी तो हैं, वो नुकसानात भी हैं, वो तो साथ साथ चलने ही चलने हैं, हम उससे बच नहीं सकते हैं। वो कुछ अरसे की तो बात है, ये कौन सा हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए ऐसा प्लान कर लिया गया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखें असल में हुआ क्या, पिछले चंद सालों से ये जो है ना इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज किया गया। मैं मिसाल के तौर पे बच्चा जो है एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट को या जो भी इस तरह की जो हमारी आईटी रिसोर्सेज हैं उसका सही इस्तेमाल इतना बच्चे के लिए वो स्कूल से पढ़ के आता था, आके उसने कार्टून देखने हैं या जो भी देखना है, अगर बड़े हैं तो वो उन्हें अपना सोशल वेबसाइट्स पे उनके अपने सारे वो प्रोफाइल्स वगैरह हैं। इसको ये तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, आपके भी हैं, सारे मेरे भी हैं, इनके भी हैं, जो देख रहे हैं उनकी भी सब। मगर देखिए मैच्योरिटी का लेवल होता है ना कि एक एडोलेसेंस एज के बच्चे का या एक छोटे एज का बच्चे का, देखिए आप बच्चे को आजकल ट्रेन किया है जनाब, कार्टून लगा के बैठ के उसको खाना खिलाया जाता है,
2 साल का बच्चा है वो नहीं फीड लेता। बात ये है कि जब बच्चा आपकी बात मानता भी नहीं है, बात वो नहीं जब मानता, वो मानेगा भी नहीं, बच्चा अब आइंदा आने वाले दौर में मानेगा वो भी नहीं। दुनिया में आता है तो सेंटर में लेटा होता है माँ बाप के, माँ की मोबाइल की लाइट और बाप की मोबाइल की लाइट जब देख रहा होता है तो वो वही मांगता है बड़ा होने के बाद। 70% जो मिडिल क्लास है या उससे कम वाले जो पेरेंट्स होते हैं, अब हम उनको यही बात कह रहे हैं कि देखें इसको ऑनलाइन को आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, आप ऑनलाइन और दोनों से यानी कि फेस टू फेस क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों को जो है आप इसको करें। बाज पेरेंट्स समझते हैं कि पहले नॉर्मल था अब स्कूल नॉर्मल हो गए होंगे, अभी भी वो ऑनलाइन अडॉप्ट नहीं कर रहे, मगर हम ये चाहेंगे कि ऑनलाइन और दोनों को ब्लेंडेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ताकि बच्चा अगर 2 दिन भी स्कूल आता है या कभी एब्सेंट भी हो जाता है तो वो ऑनलाइन भी उसको फॉलो अप कर रख सके अपनी एजुकेशन को। तो ये हम चाहते हैं कि आवाम को चाहिए मास्क पहने, चाहे वो फाइन के डर से पहने, 500 रुपए के डर से पहने, मास्क पहने, प्रिवेंटिव्स हो, सोशल एक्टिविटीज कम कर दें, अपने बच्चों का पेरेंट्स भी ख्याल करें और स्कूल भी ख्याल करेंगे, और गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए जिस पॉलिसी से जो है बच्चों की सेहत का। थैंक यू सो मच अख्तर साहब। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, हमने इस वक्फे में जो इस हिस्से में जो बात की उसमें यही कि जितने भी लोग हैं वो SOPs को फॉलो करें और माँ बाप और स्कूल वाले दोनों मिलकर बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन की अहमियत के हवाले से जो है वो गाइड करें। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अब हम बात करेंगे बुज़ुर्गों के हवाले से जो कि हमारे घर के बड़े हैं। अगर हमारे घर में, आपके घरों में, आपके सर पे बुज़ुर्गों का साया मौजूद है तो यकीन जाने कि आप बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो किसी नेमत से कम नहीं है। लेकिन आजकल के दौर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं, हम इतने बिज़ी हो गए हैं कि हम उनको सही तरीके से टाइम नहीं दे पाते। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। हम इसी हवाले से आज बात करेंगे, बुजुर्गों के एहतराम के हवाले से। कहते हैं कि सब कुछ गूगल पे नहीं मिलता है, कभी कभी बुजुर्गों के पास भी बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल। और हमारी सोसाइटी में बुजुर्गों के अदब और एहतराम के हवाले से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज भी बहुत सारी ऐसी खूबसूरत मिसालें मिलती हैं जिस पे हमें नाज है। मगर जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, बुजुर्गों की अहमियत को शायद हम उस लिहाज से नहीं समझ पा रहे हैं। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए आज हमने अपने प्रोग्राम में इस मौजू का इंतखाब किया है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँगा। मेरे साथ तो स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, आप एक तजियाकार हैं, ज़फ़र खान साहब हमारे साथ हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी एक गेस्ट जो है मौजूद हैं, मैं उनका भी तारुफ करवाता हूँ। एक नामवर सोशल वर्कर हैं आलिया सारिम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। माशाअल्लाह। भाभी मैं ज़फ़र साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, फिर आपकी तरफ आते हैं। ज़फ़र साहब, क्या आपको लगता है कि जो नई नस्ल है हमारी, वो बुजुर्गों के अदब और एहतराम से नावाकिफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने जो है इस अहम मौजू पर जो है वो गुफ्तगू की दावत भी दी और इस अहम मौजू का इंतखाब भी किया जो इस वक्त माशरे की ज़रूरत है। बिलाशुबा हमारे माशरे जो हैं उसमें ये मुकम्मल सच नहीं है, अभी भी बुज़ुर्गों का एहतराम जो है वो मौजूद है, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसमें कमी आती जा रही है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जिन माशरों में बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं है और वहाँ पर उनको बोझ समझा जाता है और फिर ये समझा जाता है कि इनकी ज़िम्मेदारी को ना हम उठा सकते हैं, ना हम इनके मसाइल को हल कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखें कि ओल्ड हाउसेज और ओल्ड होम्स के हवाले से ओल्ड एज होम ओल्ड एज होम जो है वो एक बड़ी तादाद में उनका एक सिलसिला और एक नेटवर्क जो है वो कायम है। और वहाँ पर ये होता है कि किसी फादर डे पे और किसी मदर डे पे और किसी जो है वो बुजुर्गों के दिन के मौके पे कोई साल में 1 या 2 दिन या कोई क्रिसमस वगैरह पे जाकर जो है वो उन्हें फूल और मिठाई जो है वो
दे दी जाए और बज़िम्मेदारी पूरी हो गई। बाकी 364 दिन बेचारों का जो हाल वो जो है वो वहाँ पर जो है वो एक तन्हाई, कैद तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उनके अपने उनके साथ नहीं होते और ना वो अपने अपनों से मिल सकते हैं, ना उनसे कोई अपने दिल की बातें कर सकते हैं, ना उनके मामलात में कोई जो है वो, क्योंकि अपने छोड़ चुके होते हैं उन्हें। ओल्ड एज होम तो बहुत बड़ा सहारा है उनके लिए। बिलाशुबा। यानी मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ अभी ये कल्चर परवान नहीं चढ़ा है। हाँ। अभी इसकी इब्तिदा है, अभी इसका आगाज हुआ है। ठीक है। अच्छा होता ऐसा होता ये है कि जो बुजुर्ग जिन घरों में मौजूद होते हैं ना, तो ये जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, इनका एक तजर्बा है। इनके उस तजर्बे की बुनियाद के ऊपर आप देखें, जिन घरों में, जिन खानदानों में बुजुर्गों को अहमियत दी जाती है, उन खानदानों में और उन घरानों के अंदर जो है वो फैमिली इंटैक्ट भी रहती है। और उसमें कोई मसाइल जन्म लें तो उन बुजुर्गों की बात जो है वो हुर्फ़े आखिर भी होती है और उनको एक वीटो भी नजर आती है। हाँ, वीटो पावर भी उनको हासिल होता है, जिसकी बुनियाद पे वो तनाज़ात, वो जो ख़ानदानी तनाज़ात जो होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं और उस माशरे में, उस ख़ानदान में, उस घर में वो एक खैर और बरकत भी नजर आती है और एक सुकून भी नजर आता है। और असल चीज़ तो यही है ना कि भाई इंसान जो है वो, यानी अगर कोई दौलत कमा रहा होता है, पैसे कमा रहा होता है, कोई तगदू कर रहा होता है, तो इसलिए कि उसके जो है ज़िंदगी के अंदर सुकून और आफियत उसको मिले। सही। अच्छा, और वो सुकून और आफियत ही गारत हो जाए, फैमिली सिस्टम ही ख़त्म हो जाए, बुजुर्गों को की अहमियत ही को तस्लीम करने से इनकार कर दिया जाए, उनको ओल्ड एज होम के अंदर जो है वो छोड़ दिया जाए, तो फिर यही होता है कि वो माशरे और वो ख़ानदान बिखर जाते हैं। आप देखें फिर वहाँ पर वो मियाँ बीवी भी बहुत ज़्यादा अरसे नहीं रह पाते, वो बच्चे भी फिर वो उनका एहतराम उस तरह से नहीं करते। ठीक है सर, ठीक है सर। आलिया भाभी, आपसे सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि अभी ज़फ़र साहब ने भी कहा कि बुज़ुर्गों का होना, बड़ों का होना एक रहमत है, एक बरकत है हमारे घर में, लेकिन क्या वजूहात हैं, क्यों हम उनसे दूर होते जा रहे हैं? क्या सोशल मीडिया इस चीज़ का ज़िम्मेदार है या तरबियत में वालिदैन की कुछ कमी रह गई है? क्या वजह आप समझती हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। दिमाग जो है ये एक मैग्नेट की तरह होता है, इसको आप जो चीज दिखाते हैं उसको खींच लेता है। अगर अच्छी चीजें एनवायरनमेंट पे होंगी तो ये मैग्नेट वो ले लेगा, बुरी होंगी तो वो ले लेगा। खुदारा माशरे में अच्छी बात कीजिए, अच्छा अमल कीजिए ताकि अच्छाई फैले। हम घर में लगाते हैं सायादार दरख्त, और वो एक दिन में परवान नहीं चढ़ता, उसकी छाया एक दिन में नहीं मिलती। जब वो कई साल गुजर जाते हैं तो वो एक बड़ा दरख्त बन जाता है, वो बेहतरीन साया देता है। ये बुजुर्ग उस सायादार दरख्त की तरह होते हैं। अगर कोई एक दरख्त को काटता है तो हम उसकी बेवकूफी पे हंसते ही है ना कि इस दरख्त ने पूरी जिंदगी को संभाला हुआ है और आपने इस दरख्त को काटा। तो ये बुजुर्ग उसी दरख्त की मानिंद है जिसको ठंडी छांव चाहिए, जिसको खूबसूरत जिंदगी चाहिए। वो दुआ करें कि उनके अपने बुजुर्ग जिंदा सलामत हो, उनकी खिदमत करें, अपने घरों में रखें। और जिनके पास से ये साया अल्लाह ताला की मर्जी से जा चुका है, उनसे मैं ये कहूंगी कि अगर वो दोबारा ये मोहब्बत देखना चाहते हैं तो उन लोगों को संभाल लें जिनके बच्चे उनको घरों से निकाल देते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ हमारी सोसाइटी में चल रही हैं। ठीक है भाभी, मैं यहाँ पे एक चीज मैं जानना चाहूंगा। देखिए, आपने बुजुर्गों को तनावर दरख्त से तशबीह दी है, बिलाशुबा ऐसा ही है, तो वो अपनी घनी छांव से पूरे खानदान को जो है वो महफूज करते हैं। मगर जो हमारी बुनियादी तालीमात हैं उस हिसाब से ओल्ड एज होम्स का सोसाइटी में होना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारा जो दीन इस्लाम है वो हमें ये नहीं सिखाता है, मगर फिर भी बुजुर्गों के मसाइल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम उन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जिन लोगों ने उनके मसाइल को देखते हुए ओल्ड एज होम्स बनाए। मगर जिस तरह जफर साहब बात कर रहे थे कि मुस्तकबिल में कहीं हम बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन की तरफ ना चले जाएं, वो जो हमारी सोसाइटी में बुजुर्गों का अदब और एहतराम है कहीं वो ना इधर उधर निकल जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फहीम भाई, इसीलिए मैंने कहा कि बेशक हालात बहुत बदतर नहीं है लेकिन उस तरफ सफर शुरू हो गया। मेरे शेल्टर होम में पहले कम बुजुर्ग आया करते थे, अब तो ऐसा लग रहा है कि हर दूसरे दिन किसी एक बुजुर्ग को मैं अपने पास रख लूं। अच्छा, वजह उसमें क्या होती है? दो तरह के बुजुर्गों से घर वाले परेशान होते हैं। एक वो बुजुर्ग जो बीमार है, चलने फिरने से माजूर है, जिसको 24 घंटे देखना पड़ता है, मेनली उन बुजुर्गों से लोग घबराते हैं। और दूसरे वो बुजुर्ग बहुत दुख से
समझता हूँ जिनके पैसे, जिनकी जायदाद औलादों ने बांट ली है और अब उन्हें लगता है कि हमारे वालिदैन जो हैं वो हमारी जिम्मेदारी बन गए हैं और जो जो चीजें हमें उनसे चाहिए थी वो हमने उनसे ले ली हैं। ये बहुत तकलीफदेह सोच है, क्योंकि ऐसे लोग भी सोसाइटी में मौजूद हैं जो किन अल्फाज में मैं बताऊं बहुत दुख के साथ, कि जो ये इंतजार करते हैं कि माँ बाप जब इस दुनिया से रुखसत होंगे तो उन्होंने जो जिंदगी भर पैसा या मरात या जो चीजें जमा की है वो हमारे हिस्से में आएंगी। माँ की और बाप की मोहब्बत अपने हिस्से में लेने के बजाय उस पैसे के लिए सोच रहे हैं जो उनके पास मौजूद है, उन्हें भी निकाल दिया जाता है। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जितने वालिदैन सुन रहे हैं, खुदारा अपनी जायदादें अपने बच्चों के नाम अपनी जिंदगी में नहीं कीजिए। आप बेशक आप एक वसीयत कर दीजिए, आप वसीयत करके पूरे खानदान को बिठाइए, कानूनी कार्रवाई भी कर लीजिए कि मेरे बाद ये चीजें इस तरह से मेरे मरने के चाहे अगले ही लम्हे या तदफीन कर आना, मेरी ये जायदाद ये तुम इस तरह बांट लेना। कानूनी वसीयत भी कर दें, बिठा के भी बात करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में अपने हाथ पैर नहीं काटें, अपने सर की छत नहीं हटाएं। अगर हटा रहे हैं तो मैं देखती हूँ कि फिर बच्चों का रवैया भी बदल जाता है। कई दफा अपनी औलाद का रवैया नहीं बदलता, मिसाल के तौर पे बेटे का नहीं बदलता, तो आपको अंदाजा नहीं है कि आने वाली आपके साथ कितनी, क्योंकि गो के बड़ी बेहतरीन बहुएं सोसाइटी में जो खिदमतें करती हैं जो अपनी माँ से ज्यादा। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि अपना हथियार अपने ही हाथ में रखना चाहिए। अगर आप अपना हथियार दूसरे के हाथ में देख के समझेंगे कि ये आपकी हिफाजत करेगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी, नादानी है। बिल्कुल सही है। एक वक्फे का वक्त, दोस्तों एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। हम जफर खान साहब से और आलिया सारिम साहिबा से गुफ्तगू का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे हाथ में ये कोक की बॉटल मौजूद है और हम सब जानते हैं कि कोक का जो कोलैबोरेशन है वो चल रहा है इजी पैसा के साथ। और आपको करना ये है कि आपको इसका जो रैपर है इसको पील करना है और जब आप पील करेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा एक कोड और इस कोड को आपको उसके बाद ये करना है कि आपको इजी पैसा की ऐप डाउनलोड करनी है और ये कोड आप उसके अंदर एंटर करेंगे और जब आप एंटर करेंगे कोड तो आप डिफरेंट किस्म के जो हैं प्राइजेस वो जीत सकते हैं। बहुत सारे कैश प्राइजेस हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ फ़हीम हम भी इसको जी एंटर बिल्कुल, करें। ये इजी पैसा की ऐप के में जो है ये नंबर हमें डालना होगा और उसके बाद जो है एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा हम सबको। इसी हवाले से एक टीवीसी है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं ताकि सब कुछ आपको दोबारा से याद हो जाए और आप जान सके कि किस तरह आप एक्साइटिंग प्राइजेस जो हैं वो विन कर सकते हैं। Winning है refreshingly easy. Grab a Coke. Feel करो label. Easy पैसा ऐप में कोड एंटर करो and get a chance to win 100,000 daily with guaranteed cashback prizes. जी दोस्तों, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और आज बुजुर्गों के अदब और एहतराम के हवाले से हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जफर खान साहब और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम साहिबा। वक्फे से पहले हम आलिया सारिम साहिबा से बात कर रहे थे, अभी हम जफर साहब की तरफ बढ़ते हैं। जफर साहब, दो किस्म के बुजुर्ग अभी तक जो गुफ्तगू हुई उसमें हमने जाना, एक तो वो हैं जिनको अपने अपने घरों में वो अदब और एहतराम वो हासिल है और वो तनावर दरख्त की तरह जो पूरे ख़ानदान को साया दे रहे हैं, और दूसरे वो हैं जो बड़ी मुश्किल और तकलीफ में अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। तो जो लोग वाकई मसाइल में तकलीफ में अपने दिन गिन रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, हम उनके हवाले से बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या उनकी अपनी तरबियत में कोई कमी रह गई है कि अपनी वो नस्ल को, अपने ख़ानदान को उस तरह तरबियत नहीं दे सके, या वो कोई सोसाइटी का या उन जो नई नस्ल है उनका मसला जो है आप मेजरली काउंट करते हैं? देखें, ये बात आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है और इसमें हम बुज़ुर्गों को भी बिल्कुल बरी-ज़िम्मा नहीं कर सकते, बल्कि हमें तो ये अभी से बुज़ुर्गों को ये मैसेज देना चाहिए कि जैसी आप तरबियत करेंगे अपने बच्चों की, अपने घर के दीगर लोगों की,
तो आगे जाकर उसका समर भी आप ही को मिलना है। जी। अगर आपने अच्छी तरबियत की है तो आप का जो ये आखिरी वक्त है ये एक अच्छा गुजरेगा। और अगर आपने तवज्जो ही नहीं दी उनकी तरबियत के हवाले से, इस तरह के जो मामलात हैं उस पर जो है वो उनको पहले से जो है उनकी ब्रेन वॉशिंग नहीं की, उनको जो है वो इस हवाले से जो है वो दीनी तरबियत और शऊर और आगही और तालीम और तहजीब, तालीम के साथ साथ तहजीब अगर ये हमने नहीं दी तो फिर इसमें कसूरवार हम खुद भी होंगे। यानी इसलिए जो है इस वक्त, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आज के प्रोग्राम की मेन थीम ही ये है कि बुजुर्गों को हम ये मैसेज दें इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि अभी वक्त है, आप अपने जो भी घर के लोग हैं उनकी तरबियत और उनकी यानी वो तहजीब और उनके जो है वो उस पर जो है वो आप तवज्जो दें ताकि आपका आने वाला कल भी जो है वो महफूज रह सके। ये ना हो कि कल फिर जो है वो आपको भुगतना पड़े। तो ये एक मसला है। ठीक है। दूसरी तरफ नस्ल। जी 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 जी। अच्छा, दूसरी तरफ फिर जो इस तरह के जो बुजुर्ग हैं कि जो वाक़तन इस वक्त मसाइल का शिकार हैं, उनके लिए मैं बात करना चाहता हूं कि 2-3 बड़े अहम मसाइल हैं कि जिसके ऊपर जो है वो हमारी हुकूमत को और स्टेट को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। यानी आप देखें कि EOBI और जो पेंशन वाला जो मामला है, और फिर दूसरा जो ये सेहत का जो मामला है। यानी आप देखें कि बुजुर्ग जो है वो उनमें बीमार ज़्यादा होते हैं, उनको दवा की ज़रूरत होती है, उनको इलाज की ज़रूरत होती है, उनको अस्पताल की ज़रूरत होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो सेहत कार्ड का जो अजरा हो रहा है, हेल्थ कार्ड का जो अजरा हो रहा है, बड़ा अच्छा है। तो ये जो है वो जो भी इस तरह के बुजुर्ग हैं कि जो पेंशनर हैं, जो EOBI के अंदर रजिस्टर्ड हैं या जो रजिस्टर्ड होने चाहिए, उन सबको जो है हेल्थ कार्ड का अजरा किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही। आलिया भाभी, आपसे पूछना चाहूंगी कि कहते हैं कि बुजुर्गों का घर में होना, उनका साया जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है, और हम उनके तजुर्बों से, उनकी नसीहतों से, उनके मशवरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप क्या कहेंगी, जो हमारी नई नस्ल है, नई जनरेशन है, जो उनके पास नहीं बैठती, जो उनसे दूर है, और घर में होते हुए भी हम टेक्नोलॉजी के पास दूसरे लोगों से तो करीब हो गए हैं, लेकिन जो घर में हमारे मौजूद है, जो नेमत मौजूद है, उनसे हम दूर हो गए हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का ये बहुत बुरा एक असर है जो हमारी पूरी सोसाइटी पर मौजूद है। हम जिंदगी में 3 तरह सीखते हैं, किताबें पढ़कर सीखते हैं, खुद अपने तजुर्बे से जिंदगी सीखते हैं, और तीसरा तरीका ये कि हम बुजुर्गों के पास जाकर सीखते हैं। और जो हम बुजुर्गों के पास बैठकर सीखते हैं वो इसलिए बहुत बेहतरीन होता है कि एक तो बुजुर्गों के पास किताब का भी पूरा इल्म है और अपनी जिंदगी का भी निचोड़ है। तो ये आपको एक ऐसे उस्ताद होते हैं जो आपको डबल चीजें दे रहे होते हैं। Exactly. लेकिन बात ये है कि जब अट्रैक्शन, देखिए ये जो यूथ है, यूथ के पास बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है। मैं उनको कसूरवार इसलिए नहीं ठहरा सकती कि टीन्स में हमें खुद पता है कि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके जहन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो हम उन्हें इसलिए कसूरवार नहीं ठहरा सकते कि उनको हमें इस मोहब्बत से अपनी तरफ करना है कि उन्हें उन फजूल बातों में और बेकार बातों में जिसमें उलझे हैं वो उससे निकल सकें। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में ये उम्र अभी बच्चों पर आ रही है। हम कभी टीन्स में की एज में नहीं थे, या अगर मैं आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले चली जाऊं तो बच्चों पर ये उम्र नहीं आ रही थी। बात ये कि इंटरनेट ने, ये सोशल मीडिया ने बच्चों को इस हद तक अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जब ऐसी गेम्स उसमें आती हैं कि यूथ हमारी देखकर उससे खुदकुशियां कर लेती है, इतना जहन पर सवार हो गया है। तो फिर बुजुर्ग जो है ना, बुजुर्ग के साथ बैठना बड़ा लतीफ सा जज्बा होता है, और बड़ी लतीफ से एक सुरूर बुजुर्ग के पास बैठ के आता है। दफा तो ये बुजुर्ग इतनी बड़ी नेमत है घर में होना कि अगर माँ बाप, क्योंकि हमको पता है हम सब इस भाग दौड़ में लगे हैं, पैसे की, जिंदगी की, और हुकूमत ने हमें क्या दिया है, रोटी कपड़ा मकान का नारा बहुत हम सुनते हैं, लेकिन अगर पब्लिक को मिला हो तो आज औरतें भी मजबूर ना हो कि घर से निकल कर काम करती, तो वो नानी, दादी, दादा
बैठकर अगर घर के माँ बाप निकल भी जाते हैं तो पीछे वो उनको संभालते हैं, लेकिन नेट की वो जो हैजान एक परवरिश चल रही है उसने हमें लतीफ जज्बों से आरी कर दिया है। हमें होश तब आता है जब हम खुद उम्र के उस हिस्से में, या जब हम खुद उस परेशानी में आ जाते हैं, जब हम खुद मजबूर होते हैं कि दूसरे हमारी मदद को आए। जब हमारे पास वक्त होता है कि हम मदद करें तो हम इन चीजों में अटके होते हैं जिसमें बज़ाहिर बहुत शैतानी काम है, बहुत मैं समझती हूँ तबाही के काम है, उनको इतनी आसानी से एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हम सब जानते हैं कि नेट पर क्या है। उस गलासत में लथड़ कर हम लतीफ जज्बों से आरी हो रहे हैं, हम अपने अजीजों के, अपने रिश्तेदारों की मोहब्बतों से महरूम हो रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो हम बो रहे हैं कल हम वो काटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, जी जी बिल्कुल आलिया भाभी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स जो है वो रोशनी डाली। वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। नेक्स्ट कैफे वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को हम फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं बुज़ुर्गों के अदब और एहतराम के हवाले से, बुज़ुर्गों की अहमियत के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज़फ़र खान साहब। ज़फ़र खान साहब, हमने मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की है इस मौजू के हवाले से, मगर एक जो चीज़ जिसके ऊपर आपने भी बात की और भाभी ने भी बात की, वो था दौर जदीद जिसमें सोशल मीडिया, इंटरनेट और ये सब कुछ। अगर इसका बहुत बड़ा कसूर है जिसकी वजह से हम बुजुर्गों के एहतराम से दूर होते जा रहे हैं, उनकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये इंटरनेट और ये जदीद दौर ये तो और ज़्यादा जदीद होता जाएगा और ये तो हमारे साथ रहेगा हमेशा। तो इसका मतलब है हम तो अपने ट्रैक से बिल्कुल ही निकल जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता तो होगा इस सब के साथ रहते हुए भी। बिलाशुबा ये इस वक्त का अहम इशू है और इंटरनेट और सोशल मीडिया जो है उसमें हर फर्द जो है वो मुनहमिक है और वो अपने यानी अतराफ से भी गाफिल होता है। और फिर हम देखते हैं कि इस तरह के उसमें जो है टिकटॉक और दूसरी चीज़ों में वो अपनी जान तक गंवा बैठता है बाज़ औक़ात। जी हाँ, ऐसे भी केसेस आए हैं। हाँ, इस हद तक की भी जो है वो केसेस मौजूद हैं। और वही पबजी गेम के अंदर जो है वो इस तरह से वो मुनहमिक होता है खाना भूला हुआ है और ये और बहुत सारी चीज़ें तक कर रहा है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जिस तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को, अपने घर के ख़ानदान के दीगर अफराद को अच्छी रहाइश फराहम करें, अच्छी ग़िज़ा फराहम करें, अच्छी तालीम फराहम करें, अच्छी सहूलियात फराहम करें, वहीं साथ ये भी है कि वो उनकी अच्छी तरबियत भी करें। और इस सबसे ज़रूरी है जी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम बकिया वो जो एक जो मटेरियलिस्टिक दौर के अंदर जो है वो हम सारी मादी ज़रूरियात पूरी करने में तो हम पूरी तवज्जो दे रहे होते हैं, सही, और वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी ये बिगाड़ जो है वो पैदा हो रहा होता है। हाँ। तो वहाँ हमारी ये भी ज़रूरत बनती है कि हम उनकी दीनी जो तरबियत है, उनकी जो जहनी नशोनुमा है, उनके अंदर जो तहजीब है, उनके अंदर जो शाइस्तगी है, उनके अंदर जो बुजुर्गों का एहतराम है, उनके अंदर जो पड़ोसियों के साथ मामलात हैं, उनके जो है वो जो भी ताल्लुक़दारी है, उस हवाले से जो है वो जब तक हम उनको बताएंगे नहीं, उनको सिखाएंगे नहीं, समझाएंगे कैसे हैं कैसे? आप देखें कि वो अगर बुजुर्ग किसी ख़ानदान में मौजूद है और उसने अपनी बात और अपनी अहमियत को अगर बरकरार रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें जब दे रहा है तो उस वक्त तो उसकी एक हैसियत है ना ख़ानदान में। सही, बिल्कुल तो है। उस वक्त वो अगर एक ताल्लुक को अपने ख़त्म नहीं होने देगा सही अपने बच्चों से और एक वास्ते को जो है कमज़ोर नहीं पड़ने देगा, उसके लिए 10 तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि उनके साथ बैठे भी, उनके साथ डिस्कस भी करें, उनके मामलात को डिस्कस करें, एक दोस्ताना माहौल उनके साथ जो है वो अपनाए और उसी के अंदर उनको फिर अपना तजर्बा, अपना मुशाहिदा, अपने जो सारी चीज़ें यानी सर वालदैन जो हैं उनको ही ये तालीम और तरबियत देनी होगी ताकि वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी, उनका ख्याल करें। वालदैन की ही जिम्मेदारी बनती है, यही कहना चाहिए। ये दादा दादी और नाना नानी के तो इतने मुकद्दस रिश्ते हैं कि ये माँ बाप से ज़्यादा ये जो है वो यानी अपने पोता पोती और नवासे बच्चों को प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं। वो उनका टाइम उनके साथ ज़्यादा गुजर रहा होता है, उसके अंदर जो है वो
ان کی کوئی جو ہے وہ اگر وہ یہ ان کے مائنڈ میں موجود ہو کہ ان کی ہمیں تربیت بھی کرنی ہے، صرف لاڈ پیار ہی نہیں کرنا، صرف ان کی خواہشات ہی پوری نہیں کرنی، بلکہ ساتھ ساتھ ان کو ابھی سے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ ہر وقت ناسے بنے رہیں، ہر وقت جو ہے وہ آپ کوئی جو ہے وہ ایک اس طرح کا انداز اختیار کر لیں کہ اتنے سخت ہونے، وہ تو آج کل تو بچے اتنی سختی برداشت بھی نہیں کرتے. سر ایک چھوٹی سی چیز اور جو بہت ضروری ہے، ماں باپ کے لیے بھی ایک پیغام ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بزرگوں کا احترام کریں تاکہ وہ بھی احترام کرنا سیکھیں اور کل کو آپ کا احترام کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہی گھرانوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے جن گھرانوں کے اندر ماں باپ اپنے بڑوں کے ساتھ رویہ صحیح نہیں رکھتے. کل کو پھر جب وہ ماں باپ اس درجے پہ جائیں گے، دادا دادی اور نانا نانی کے درجے پہ، تو پھر ان کی اولاد بھی ان کا احترام نہیں کر رہی ہوتی. جن گھرانوں میں، جن خاندانوں میں اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ ہوتا ہے اور ان کو اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے، فیصلوں کے اندر ان کو جو ہے وہ جو اہم خاندان کے فیصلے ہیں اس میں ان کو بٹھایا جا رہا ہوتا ہے اور ان کی بات کو جو ہے وہ یعنی حتمی تصور کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ان گھرانوں میں یہ خرابی یعنی نسبتاً کم ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے. بلا شبہ. بہت بہت شکریہ ظفر خان صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بہت ہی جو ہے اچھی گفتگو کی. اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جن کے سروں پر ان کے ماں باپ، ان کے دادا دادی، ان کے نانا نانی کا سایہ سلامت ہے، وہ ان کا احترام کریں، ایک بہت بڑی نعمت ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے زہرا رضا اور فہیم عباد کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.